Next, we start with another connection, that is resistance in parallel. नाउ सीरीज में हमने देखा था कि जब भी करंट फ्लो होता है तो वो सिंगली फ्लो होता है वन आफ्टर अनदर, एंड जो रेजिस्टर्स भी कनेक्टेड होते हैं वो एक के बाद एक होते हैं. दैट इज कनेक्शन इन सीरीज. पैरेलल में कैसे होता है कि आप एग्जैक्टली एक के नीचे एक कनेक्ट करते हो, सो दैट इफ यू कैन सी एट दिस पॉइंट ये जो सर्किट चालू होगा, ये करंट यहाँ से ऐसे फ्लो होगा, सी हायर लेवल लोअर लेवल, सो इट विल गो फ्रॉम सी टू डी. तो जब भी ये पॉइंट सी पे यहाँ पे पहुंचेगा, it will divide into three parts. So in a situation where a current is dividing in three parts such that at a time एक साथ तीनों resistors में current जा रहा है, that kind of connection is called as resistance in parallel. The voltage over here is common because the higher point and the lower point, or say the higher potential and the lower potential of all the three resistors is same. इसलिए हमने वोल्टेज कॉमन रखा है. जैसे सीरीज में करंट कॉमन रहता है, वैसे ही पैरेलल में वोल्टेज कॉमन रहता है. सीरीज में हमने इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया था हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस. यहाँ पे हम इंडिविजुअल करंट मेजर करेंगे हर एक रेजिस्टेंस में. So that is the difference between series and parallel connection which you should remember. क्योंकि काफी बार distinguish between वगैरह में आता है, पूछा जाता है, so you should be knowing by that. So this entire connection shows how resistors work in parallel. Let us understand this in detail. Resistors are said to be connected in parallel when their ends are connected at both sides as shown in the figure. The figure shows three resistors R1, R2 and R3 connected in parallel between points C and D. V is the potential difference between C and D, as I mentioned. Let I1, I2 and I3 be the current flowing through R1, R2 and R3 respectively. तो ये रहा, एज आई सेड कि इस पॉइंट से करंट तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. तो R1 के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, लेट दिस बी I1, दिस बी I2 एंड दिस वन बी I3. तो ये जो करंट है वो इंडिविजुअली मेजर होंगे क्योंकि तीनों में एक साथ करंट आ रहा है. सो वी से कि ये जो टोटल करंट पास हो रहा है, अगर करंट यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है वो R1, R2, R3 से पास होके वापस पॉइंट D पे कलेक्ट हो रहा है. इट इज meeting over here. So the total current which we are passing is nothing but sum of this individual current which we are getting over here. Hence we get the equation I, that is the total current, is equal to the sum of individual current. सीरीज में हमने कैसे स्टार्ट किया था, दैट पोटेंशियल डिफरेंस, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था, दैट वाज सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ पे हम करंट से स्टार्ट करेंगे. द टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल करंट, दैट इज I1, I2 एंड I3. Again Ohm's law यूज करेंगे, V equals to IR, therefore I is equals to V upon R. तो ये जहां जहां I है वहां वहां we'll substitute V upon R. But यहाँ पे R is nothing but resistance, effective resistance for parallel circuit. Hence R के जगह पे we'll simply denote it as R peak, where P stands for parallel. So according to Ohm's law, as I mentioned, we have the formula V is equals to, I equals to V upon RP. So I1 is V upon R1, I2 is V upon R2, I3 is V upon R3. So when we substitute this in equation 1 above, I के जगह पे V upon R, so this is V upon RP equals to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. ये जैसा हमने वहां पे I कॉमन निकाला था, ओवर हियर इफ यू सी V कॉमन है, सो V बाहर निकलेगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 upon R1, 1 upon R2 and 1 upon R3. तो ये जो V कॉमन निकला है वो and this V will cancel out. Hence we are remaining with 1 upon RP equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. सो ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस. और से इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी हैव दिस फॉर्मूला. बट ये हमने सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था यूजिंग 3 रेजिस्टेंस, हेंस वी हैव द फॉर्मूला फॉर 3 रेजिस्टेंस ओवर हियर. बट इफ वी हैव n रेजिस्टर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, the final formula becomes 1 upon Rp equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 dot 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 1 upon Rn. So this is how the effective resistance in parallel circuit is calculated. तो एक short brief देखेंगे हम overall parallel connection का. That when a number of resistors are connected in parallel,
The inverse of effective resistance is equal to the sum of inverses of its individual resistance. Inverse of effective मतलब effective resistance parallel का RP होता है, but 1 upon RP मिला है, इसके लिए उसको inverse of effective resistance बोलते हैं. So whenever you encounter the word inverse, it means it is 1 upon something. So it says कि जो 1 upon RP है inverse effective resistance, that is sum of inverse of individual resistance. That is 1 upon R1, 1 upon R2, जो हमें इक्वेशन मिला था वो. The current flowing through an individual resistor is proportional to the inverse of its resistance, and the total current flowing is the sum of its individual resistors. जो हमें पहले मिला था कि जो current है, total current is nothing but I1 plus I2 plus I3. इसका मतलब से लिखना है वो important है, वो मालूम होना चाहिए. The potential difference across all is same. सीरीज में हमने क्या देखा था, that the current is same, but over here what it is, that the potential difference is same. The effective resistance connected in parallel is less than the least resistance of the individual resistors. सीरीज में क्या था, RS was greater than R1. इसमें स्टेटमेंट क्या था कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं है. पैरेलल में क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होगा, which means RP will be less than R1, it will be less than R2 and so on. This arrangement is used to reduce the resistance in the circuit. सीरीज कनेक्शन में क्या था, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस बढ़ता था, तो हम उसको ऐसे एप्लीकेशंस में यूज करते थे जहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए. पैरेलल सर्किट्स जो है वो हम कब यूज करेंगे, जब हमें टोटल रेजिस्टेंस कम करना है, which means you want more and more current to flow. That is the reason we use this kind of connection, because it reduces the total amount of resistance in the circuit. ये रहा important note. Even if any one of the bulbs connected in the parallel becomes non-functional because of some damage or any other problems, the circuit does not break and the current flows through it and the rest of the light bulbs up. सीरीज में कैसा था, एक के बाद एक कनेक्टेड था, इसके अगर एक भी प्रॉब्लम हो गया तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता था, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सच अ वे. तो अगर एक भी नॉन फंक्शनल रहा तो दूसरे सब ब्लो होते हैं, क्योंकि करंट एट अ टाइम सबके पास जाता है. When several bulbs are connected in parallel, they emit same amount of light as they would have been emitting in the individual connections. तो सीरीज के जैसा नहीं कि करंट डिवाइड होता है एकदम से, यानी दोनों के पास एक के बाद एक चला जाता है, तो ऐसा लेस ग्लो नहीं करते, ये प्रॉपरली मोर अच्छा ग्लो देते हैं अगर पैरेलल में कनेक्ट करो तो. पैरेलल कनेक्शन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज जो होम अप्लायंसेस अपने घर पे कनेक्शंस होता है सारा, so that is called as connection in parallel. कभी ऐसा हुआ है क्या, आप घर पे लाइट चालू कर रहे हो तो फैन बंद करना पड़ता है, फैन चालू कर रहे हो तो टीवी बंद करना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता है ना. आप पैरेलली टीवी हो, लाइट हो, फैन हो, फ्रिज हो, सब चालू रहता है. तो ये क्यों चालू रहता है, क्योंकि सारा कनेक्शंस पैरेलल में रहता है, इसके लिए. अगर पैरेलल नहीं रहता तो फिर क्या होता, एक चालू करने के लिए एक बंद करना पड़ता. क्योंकि पैरेलल में है इसके लिए आप साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीजें एक साथ स्टार्ट कर सकते हो. तो हेंस पैरेलल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस याद रखना, दैट द डिवाइसेस कनेक्टेड एट योर हाउस इन योर हाउस इज इन पैरेलल कनेक्शन. दिस वाज ऑल अबाउट रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डेरिवेशंस यू विल राइट इट थ्राइस, प्लस ये जो थियोरी है उसका जो ब्रीफ दिया हुआ है वो सब 3 बार लिखोगे, एंड वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन दैट इज डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, वो भी 3 बार लिखना है. अगर ये आपको समझ में आया है तो डिस्टिंग्विश इसी पॉइंट से बनता है. दैट एंड्स विद योर चैप्टर. व्हेन यू राइट डेरिवेशंस मेक श्योर यू ड्रॉ द डायग्राम्स एज वेल. और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार डायग्राम ड्रॉ करने का और 3 बार डेरिवेशन लिखने का. एवरी न्यू डेरिवेशन यू स्टार्ट यू विल ड्रॉ डायग्राम फॉर इट, मतलब डायग्राम भी 3 बार आना चाहिए. एंड ऑल्सो नॉट ऑफ द फॉर्मेट के 3 बार डायग्राम ड्रॉ किया और फिर 3 बार डेरिवेशन लिखा, दैट इज द रॉन्ग प्रेजेंटेशन वे. यू विल ड्रॉ डायग्राम्स, गिव द डेरिवेशन, राइट दैट ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अगेन यू विल ड्रॉ द डायग्राम, डेरिवेशन लिखोगे और सीधा वो ब्रीफ लिखोगे, and then last में you will write distinguish. So ये 3-3-1 होमवर्क सबमिट करना है by tomorrow.
7 p.m.